So, welcome, Sumit. Pleasure to have you for this session. I think this is very exciting for us because not just कि तुम SaaS में कुछ बना रहे हो, but इंडिया के अंदर SMB SaaS as a category which is relatively new, and you are one of the person who pioneered this space in my view. So I'm very excited to hear your journey and learning, and I would love कि इस podcast में तुम users के साथ में share your view how things evolved while building Vyapar. So let's start with the first question. मतलब what led you start this यार? मतलब I think everyone is building from India for US. What led you build something from India for India, and that too for SMB? तो थोड़ा context दो, and then मतलब would love to know your journey. Sure. First of all, thank you, Gagan, for having me on this podcast, and really excited to share about my journey so far. So coming to the point directly, so I'll give this answer in a little bit longer way. The reason is the answer lies in the roots from where I belong and what is my background, right? So I come from a business family. Everybody on my father's side, mother's side, has been in business, right? So I have seen business all my childhood. Fast forward, after completing my college, I joined Intuit, which is which has a product called QuickBooks, and that is the world's I think that is the only accounting software in the world which has the largest number of customers as of today, right? When I joined at that time, when I joined Intuit in 2007, at that time the QuickBooks product had 4 million users. Today, I think it is more than 7 million SMBs on one platform. I think that is the only platform that has that many number of customer SMBs, Wow, right? Uh, super. I think working there for 8 years gave me a lot of insights about what a good product can solve for SMEs and how their life changes. Because Intuit gives an opportunity to even talk to your customers, meet them, do customer interviews, in spite of being in engineering, right? That's a unique thing about Intuit. So I got a lot of opportunity to understand customers there, and then these two things got actually mixed together, which is my family background and understanding of the QuickBooks product in detail and how it helps, right? That made me more passionate to solve for Indian market. With that passion, I left Intuit in 2015, thinking about will that कि कुछ इंडियन मार्केट के लिए बनाना है. At that time I have not thought कि मैं क्या करूँगा, but I just left Intuit कि कुछ तो बिल्ड करना है इंडिया के लिए. And उसके बाद I was working in a startup company called Spoil for a year, and then I started Vyapar. तो व्यापार स्टार्ट ऐसे हुआ था कि so I and Shubham, my co-founder, right, we are relatives. So we used to meet together at home frequently, right, and we used to keep talking about कि कुछ तो build करना है. मतलब हमें 10 साल हो गए काम करते हुए, और छोटे छोटे बच्चों की ऐप प्ले स्टोर पे चली गई है, तो अपने को एटलीस्ट एक ऐप तो प्ले स्टोर पे डालनी है. So that was the mindset, and we used to keep meeting कि कुछ तो build करेंगे. And then basically what happened is one of my cousin brother, who has a small manufacturing unit in Firozabad, एक सोफा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी. एंड ही आस्क्ड कि यार कुछ मुझे ऐसा बना के दो जिससे कि मैं मोबाइल पे अपना रिसीवेबल, पेबल और सेल परचेज मैनेज कर सकूं. So that was the inception of how Vyapar got born. So when he asked us, I looked at all the apps on the Play Store and could not find anything which is suitable for him. या तो बहुत कॉम्प्लेक्स थे या उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब जो जो उसको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. एंड देन वी डिसाइडेड कि यार ठीक है, अब बिल्ड करते हैं, लेट विल सी व्हाट हैपेंस. एंड दैट्स हाउ व्यापार एक्चुअली गॉट बॉर्न, एंड आई एंड शुभम गॉट टुगेदर, और 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बना के प्ले स्टोर पे डाल दिया और अपने उस भाई को दे दिया कि यार तुम यूज करना शुरू करो और फीडबैक दो. सो Very दिस इज द interesting. क्विक स्टोरी ऑफ अबाउट हाउ व्यापार एक्चुअली तो गॉट तुमने मतलब स्टार्टेड. कुछ सोचा नहीं यार, फंडिंग रेस करना है, मतलब वीसी से पैसे लेने हैं, या ये धंधा बड़ा होगा नहीं होगा, एंड यू जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग. उस एंड समय जब तो कुछ भी नहीं सोचा था. एंड ये बताओ कि यार जब ये चालू करा, मतलब ओके नहीं सोचा, एंड मे बी मैनी पीपल who बिलीव इन द आइडिया, दे डोंट थिंक अबाउट कि यार what is the size of the market, what, like, because you have felt the problem, I can connect with that. बट ये चीज बताओ कि जब इसको बना रहे थे, एंड लाइक why I was surprised when I saw you, like when I saw व्यापार, कि यार तुम लोग
ऑनलाइन तुमने लिस्ट करा प्रोडक्ट को और तुम ऑनलाइन कस्टमर को एक्वायर कर रहे थे, मतलब दिस इज समथिंग 2017-18 का जो पीरियड था ड्यूरिंग आर इंटरेक्शन, मतलब ये कॉल पे कैसे पहुंचे कि यार मतलब प्रोडक्ट को ऑनलाइन, मतलब व्हाट गेव यू अ फीलिंग कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा लोग आ जाएंगे, या मतलब व्हाट वाज द इनसाइट, और मे बी लॉन्च करने के बाद और पहला कस्टमर लाने वाला या पहले फर्स्ट 100 कस्टमर लाने वाला वो फेस के बारे में थोड़ा सा श्योर। रोशनी डालो। तो अगर हमने क्या किया था कि आप अपना ऐप बना के प्ले स्टोर पे दिसंबर 2015 को डाल दिया था। ठीक है। तब तक हम अपनी जॉब्स में थे और हम पैरेलली काम करते थे इस पे, रात में सैटरडेज को इस तरह से काम करके इसको हम आगे लेके जा रहे थे। तो व्हेन वी हैड पुट द ऐप ऑन प्ले स्टोर, राइट, उसके बाद पीपल स्टार्टेड डाउनलोडिंग। एक तो व्हेन वी गेव इट टू आवर कजन ब्रदर, ही आल्सो स्टार्टेड रेफरिंग टू हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके काम की चीज तो थी वो, राइट। और फिर प्ले स्टोर से भी ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगा। फिर हम कॉल करने लगे, मैं कॉल करने लगा कस्टमर्स को, उनसे फीडबैक लेने के लिए। तो करीब 2016 अक्टूबर तक, अक्टूबर का नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा अप्रैल मई तक ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये ऐप चल जाएगा, क्योंकि लोग डाउनलोड कर रहे थे, उसको यूज़ भी कर रहे थे और फीडबैक दे रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है इस चीज़ में, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर वो कुछ भी बात नहीं कर रहा है और इग्नोर कर रहा है, देन देयर इज अ समथिंग, सम अदर प्रॉब्लम, राइट। तो लोग चाह रहे थे कि हम उसको इम्प्रूव करके उनको दें। तो इससे हमें ये तो कॉन्फिडेंस आ गया कि इसकी ज़रूरत है मार्केट में और ये ग्रो कर सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने 2016 अक्टूबर में अपना स्पॉइल वाला जॉब छोड़ दिया था। और उसके बाद हमने सबसे पहला काम किया, एक अपनी जो को फाउंडर लेके आए थे मार्केटिंग की। उसका रीज़न ये था कि हमें और शुभम को मार्केटिंग के बारे में एम भी नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था मार्केटिंग होती क्या चीज़ है, क्योंकि हम हार्डकोर इंजीनियर्स हैं बाई बाई रूट्स, बाई थिंकिंग। ठीक है। तो हमें पता था कि हम इसको वो हम काम नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट आवर स्किल सेट। तो फिर हम एक मार्केटिंग को फाउंडर लेके आ गए थे। एंड हमने सोचा ही नहीं कि फील्ड में जाके सेल करना चाहिए या फील्ड में जाके करना चाहिए। हमने तो सिर्फ सीधे फेसबुक पे मार्केटिंग शुरू कर दी थी। 10,000 रुपये महीने के लगभग का इन्वेस्टमेंट करते थे उस टाइम पे अपनी पॉकेट से, क्योंकि उस समय वी आर नॉट रेज फंड्स, राइट। तो वी वर डूइंग इट कम्प्लीटली डिजिटली ओनली। तो 10,000 20,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंड वी वर एबल टू गेट कस्टमर। तो उस समय जो कस्टमर्स आते थे वो भी मोस्टली ऑर्गेनिक ही होते थे, क्योंकि वो डाउनलोड ही 150 200 डाउनलोड होते थे पर डे। सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो बेसिकली यू आर नॉट बायस्ड विद एनी थॉट कि यार इस ये ऑनलाइन बिकेगा या नहीं बिकेगा, या बेसिकली टैली या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं जब सबने ऑफलाइन तरीके से बेचा है, मतलब यू वेंट अहेड विद जस्ट अ सिंपल थिंकिंग कि ऑनलाइन डाला है, यूजर आ रहे हैं, तो चलो अब इनको और मार्केटिंग करके और यूजर लाते हैं, सो यू जस्ट वेंट अहेड फर्स्ट प्रिंसिपली नेचुरली की। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है गगन, जो हमने मतलब उस कस्टमर से बात कर करके समझ में आया कि एक, कि कस्टमर्स मोबाइल ऐप के लिए भी पैसा दे देंगे, क्योंकि लोग खुद ही बोलते थे कि हम 400 500 रुपए तो तुम हमसे चार्ज कर लो, हम दे देंगे तुम्हें, तुम क्यों फ्री में दे रहे हो, थोड़ा और फास्ट डेवलपमेंट करो, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि लोग पैसा दे देंगे। अमाउंट कितना होगा वो अंदाजा था कि 400 500 के बीच में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये समझ में आ गई थी कि डेस्कटॉप प्रोडक्ट चाहिए लोगों को, क्योंकि उस समय भी जो लोग यूज़ कर रहे थे या जो डाउनलोड करके ट्राई कर रहे थे वो पेपर पेन वाले ही लोग थे, टैली वाले लोग ही नहीं थे, राइट। तो इसलिए वो नेचुरली होता चला गया, आई वुड से, कि हमें पता था कि जब हम इसको डालेंगे तो उसका पैसा मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कंपनी सर्वाइव कर बनेगी कि नहीं, खर्चा निकल पाएगा कि नहीं, वो नहीं पता था। तो व्हेन वी जंप्ड इनटू इट, वी सेड डिसाइडेड कि मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है मेरे बैंक अकाउंट में, सेविंग्स में, इतने में अगर कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो बंद करके दोबारा जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन बस लास्ट में रिग्रेट ना रहे कि हमने कुछ ट्राई नहीं किया। मतलब इफ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली कि हमने, मतलब व्हाई आई टुक द रिस्क ऑफ लीविंग अ जॉब ऑफ हेफ्टी अमाउंट इन इनटू इट एंड फिर जीरो सैलरी, वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि जब 60 साल के हो जाए और मरने वाले हो तो ये ना सोच रहे हो कि हमने सोचा था, ट्राई नहीं किया, बस उतना। सुपर सुपर। सो इंटरेस्टिंगली यू यू नेवर थॉट अबाउट कि यार ये कंपनी किस वीसी फंडिंग से चलेगी या नहीं चलेगी, तो तुमने मतलब बेसिकली यूजर को चार्ज करा डे वन से ही, मतलब वंस यू स्टार्ट लोग पे कर सकते हैं, तो तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फ्री प्रोडक्ट बनाऊंगा, फ्री में बांटूंगा, लाइक लॉट ऑफ अदर
people do that, and you just start charging consumer without thinking at all ki मतलब whether it can limit your market or not. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मतलब आई हैड टू चार्ज, राइट? तो अक्टूबर 2016 में मैंने जॉब छोड़ी थी, और 2017 मार्च तक आई सस्टेन द टीम फ्रॉम फ्रॉम माय सेविंग्स, एंड आफ्टर दैट हमने मार्च 2017 से चार्ज करना शुरू कर दिया था। मोबाइल ऐप कंप्लीटली पेड था, 30 डेज फ्री ट्रायल, उसके बाद पेड, देयर इज नो फ्री। सो सुमित, मधुकर यार, तो ये बताओ कि जब आपने ये शुरू किया था, तो मतलब व्हाट वाज द ड्रीम, राइट? कि कितना बड़ा कंपनी होगा, मतलब क्या था, मॉनेटरी टर्म्स में था या अचीवमेंट टर्म्स में था कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मोबाइल व्यापार ऐप चलना चाहिए, या कंपनी $1 बिलियन होनी चाहिए, या मेरे पास खुद का 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, या मैं कॉन्ग्लोमरेट बनूंगा? क्या था, मतलब व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड? उस समय जब स्टार्ट किया था, तो क्या था, मतलब इमेजिनेशन क्या था कि क्या बनेगा अगर हम जो आप कर रहे थे अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा? तो what was you going after? And after being in this for last 3-4 years, does that how do you see that vision actually getting realized? कितना नजदीक पहुंचे हो, या उसमें कुछ करेक्शन हुआ है, या बढ़ गया है, छोटा हुआ है? That will be interesting to understand. श्योर। तो मधुकर, जब हमने स्टार्ट किया था, 2015 की बात करें, तो उस समय तो सिर्फ इतना था कि जो हमारा कजन ब्रदर है वो यूज़ कर ले, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके कुछ दोस्त यूज़ कर लें, उतना ही था। ठीक है। जब 2016 अक्टूबर में जब जॉब छोड़ के मैंने इसको कंप्लीट फुल टाइम लिया, एट दैट टाइम ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये बड़ा बन जाएगा। और उस समय ये ड्रीम आ गया था माइंड में कि फंडिंग मिले या ना मिले, कोई साथ दे या ना दे, आई विल मेक श्योर कि दिस बिकम्स द लार्जेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म इन इंडिया। वो वो क्लैरिटी आ गई थी, और वो कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ये हो जाएगा। उस समय, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, उस समय भी काफी मतलब 2017 के 16 के बाद, जॉब छोड़ने के बाद भी, आई रीच्ड आउट टू मल्टीपल पीपल फॉर डिफरेंट फंड्स, फॉर द फंड, फॉर पिचिंग एक्सेट्रा, राइट? उस समय हमारी सिक्वेयर से भी थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन ऑब्वियसली नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत ही अलग था। मतलब एमएसएमई सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट वाज वेरी अनहर्ड ऑफ, राइट? तो अगर आप देखो तो 2017 से लेकर 2016 अक्टूबर से लेकर 2018 जून, लाइक व्हेन वी एक्चुअली गॉट फंडेड बाय यू एक्सलॉर, राइट? तो दैट वो 1.5 साल के लगभग वी वर रनिंग ऑन आवर ओन विदाउट एनी फंड्स। तो अगर फंड्स नहीं होते तो स्टैग्नेटेड हो गए थे, ये बात सही है, हो सकता है कंपनी आगे ना बढ़ती, नहीं, जरूर बट बढ़ती है यार, जरूर बढ़ती है। हमने यहाँ बढ़ती नहीं बढ़ती, कहीं और मुझे, से। मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि मतलब आई वुड हैव गिवन माय कंप्लीट फाइट टिल द एंड। मधुकर ये अपने से रेज नहीं करता तो किसी और से और ज्यादा पैसे रेज करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फॉर श्योर। तो तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग है मधुकर, राइट? लाइक सम ऑफ द फाउंडर्स डे वन से चालू करते हैं कि यार बहुत बड़ा सपना होता है और बहुत बड़ा विजन होता है, एंड वी लुक फॉर दैट विजन एंड हंगर इन द फाउंडर। एंड इन सुमित केस, एटलीस्ट ऑन डे वन, it was the problem he wanted to solve for his uncle and people around it, and he basically passively built his vision or dream rather than having it on day one, and and realizing it along with the journey, which is तो गगन, uh, ऐसे ही होता है कि मतलब मेरा जो 12-13 साल 14 साल का जो इन्वेस्टिंग जर्नी है, उसमें मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स या तो किसी को कुछ प्रूव करने के लिए करते हैं, राइट? सो किसी का बॉस से झगड़ा हो गया, जॉब छोड़ दिया, तो उसको उससे बेटर करके दिखाना है, या किसी का लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, उससे बहुत एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है, तो उस एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए करते हैं। तो these are, I think, the motivations. You need something, right, to basically take that plunge, right? So trigger के लिए वो तो चाहिए होता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और मधुकर, जैसे काफी लोगों का ये भी रहता है ना कि यार डे वन पे होता है कि यार मुझे $1 बिलियन कंपनी बनानी है, राइट? लाइक लॉट ऑफ फाउंडर्स नाउ डेज, स्पेशली विच कम्स स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड और हैज वर्कड इन सम लार्ज स्टार्टअप, तो उनका डे वन पे ये पिच ऑन साइज ऑफ द, लाइक कुछ बड़ा बनाना है, वो ज्यादा होता है रादर देन अगर जस्ट सॉल्विंग वो प्रॉब्लम। वाला क्राउड तो वो है जो टेक क्रंच पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, बिट्स में पढ़ रहा है, तो वो $1 बिलियन वैल्यूएशन का पहले सोचता है, बिजनेस का बाद में सोचता है।
पहले सोचता है $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, फिर वो 4 लोगों से बात करता है, बोलते हैं कौन सा हॉट सीजन का हॉट थीम कौन सा चल रहा है, और फिर सो आई थिंक दैट इज करेक्ट। तो ऑल्सो। मधुकर, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। वहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मतलब बिलियन डॉलर कंपनी बनाना और वीसीज कैसे देखते हैं मार्केट को, और हाउ डू यू पिच, वो सब मैंने एक्सेलॉर के I mean, all that I learned while I was in the incubation program of Excelor. Actually, our pitch got changed according to the VC after that. उसके पहले तो I was selling it like a businessman. Yeah, yeah, you know, yeah, yeah. So I think क्योंकि गगन, अगर आप गगन, इफ यू गो बैक इन 2008-9, राइट, जब तुमने स्टार्ट किया था तुम्हारा कंपनी, तो तुमने कौन सा $1 बिलियन का सोचा था, या सीरीज ए बी सी का सोचा था? तुमने बोला ये मेरे को बस धंधा करना है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और तुमको 4 लोगों ने चढ़ाया होगा, किसी प्रोफेसर ने बोला होगा कि बहुत सही है, राइट, और लग गए, राइट, एंड देन सडनली यू आर 2 साल घुस गया उसमें, now you have something to prove to your parents, to your peer group. You can't just walk out after 2 years, right, saying कि यार No, no, precisely, Madhukar. I think you hit the right chord और exactly यही हुआ था कि प्रॉब्लम, बट आई थिंक मुझे क्या लगता है कि जब मुझे ऐसा लगता था यार मैं पुराना एंटरप्रेन्योर हूँ, उस टाइम पे लोग प्रॉब्लम से चालू होते थे, एंड प्रॉब्लम के ऊपर इतना वजन होता था कि साइज ऑफ द मार्केट या मतलब वीसी और मतलब बिलियन डॉलर ये सोचते नहीं थे, और मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे तो मार्केट भी मैच्योर नहीं था, बट एंड सो स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द प्रॉब्लम, और मतलब वो या पर्सनल प्रूव करने का हंगर इतना ज्यादा होता था कि हम वही सोचते थे, बट आज के फाउंडर जनरली आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ सच अ डीप connection with the problem I've seen less. बट गगन, वो तो Like, वो इसलिए है ना क्योंकि इकोसिस्टम अब बन गया है ना। अब तो पहले क्या होता था कि कोई एंटरप्रेन्योर सोचता था कि मैं स्टार्टअप करूंगा, तो उसके पेरेंट्स डिस्करेज करते थे, उसके दोस्त बोलते थे क्या कर रहे हो यार, लोग बोलते हैं जॉब शादी नहीं होती है स्टार्टअप करते हैं तो। शादी नहीं होती है, राइट। There was a norm in the market कि जो स्टार्टअप फाउंडर है उसकी शादी नहीं होगी, इसलिए lot of parents used to discourage. अभी क्या होता है कि अभी कोई फाउंडर, मतलब अभी किसी ने कॉलेज में पास भी नहीं किया है, अगर वो बोलता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, तो 4 लोग एंजल फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नोबडी वांट्स टू मिस आउट दैट चांस ऑफ बीइंग द सीड इन्वेस्टर, एंड वो 500 टाइम्स का रिटर्न मिस ना हो जाए, राइट। तो इसलिए वो वहां पे तो बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट है, राइट, एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट लॉट ऑफ बिजनेस प्लान्स which are funded, right, and entrepreneurs spend time, and people also are very dispassionate about plans, right, so they keep changing plans. Pivoting is very, so in earlier days pivots will happen when somebody has spent 2-3 years, 4 years, have gained some insight, right। यहाँ पे लोग मतलब आते हैं 6 महीने में तीसरा प्लान लेके आ जाते हैं, and if you look at the pitch books today who are pitching, almost everyone is a 2x founder or a 3x founder, right। sometimes I feel like saying कि मेरे को भी लिखना चाहिए कि 100x founder, क्योंकि मैंने तो 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। so jokes apart, I think प्रॉब्लम को रिलेट करके, प्रॉब्लम को फॉलो करके विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, आई थिंक दैट पीरियड इज नाउ not coming back. I think even in this 2022 market, where the market has been very cold, here also there's still a lot of encouragement compared to what it was True, 5 years true. back or 10 years back in India. ट्रू। तो सुमित एक सवाल है इसी पे इनफैक्ट कि यार इंटरेस्टिंगली तुमने जब चालू करा था इंडिया में वीसी वेव फंडिंग वेव आ गया था, राइट, मतलब और अच्छा खासा मोमेंटम भी पकड़ लिया था। एक बार 2016-17 में कम हुआ था, बट वापस 17 के बाद 18 में चालू हो गया था। बट यार तुम्हारी जर्नी, मतलब वी केम इन 2018, बट लाइक योर जर्नी was still challenging in terms of like convincing VCs कि यार ये interesting market है या ये बड़ा market है, and you were seeing lot of other people who were likes of some khata book, okay, credit and all, who came in the market and they raised lot of money. So how were you like able to control your like mission जो था कि यार मुझे बिजनेसमैन की लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है बट फिर पैसा भी चाहिए, तो मतलब वो सिचुएशन के बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक हाउ डिड यू मैनेज एंड मैन्यूवर थ्रू दैट फेज ऑफ 2018 till maybe 2020
when people were not believing in what you wanted to do and build, like you, at least you face challenge in, you saw many rejection, uh, and Sure. you still continue to build what you wanted to build, rather pivoting कि यार चलो मैं भी कुछ ग्रोथ हैक लेके कुछ ऐसा एक मार्केट देखूं जिसमें एडजेसेंट मार्केट है और बेटर मार्केट है. श्योर। तो गगन, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आप मुझसे रियलिटी में पूछें तो देयर हैड बीन वेव्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट। तो फॉर एग्जांपल, जब हमने 2000 2018 तक कुछ भी नहीं था, मतलब 2018 में जब आपसे फंड रेज किया तब तक कोई भी और मार्केट में नहीं था, या होंगे तो बहुत अर्ली स्टेज में होंगे, तो वी डिड नॉट एवर फील एनी हीट। और दूसरा ये भी था कि वीसी कोई इन्वेस्टर भी कैपिटल पे नहीं था, तो देयर वाज नो एक्सटर्नल प्रेशर, अपनी अपनी मस्ती में हम चल रहे थे, राइट। तो जब जब फंड रेज हुआ पहला, उसके बाद 2019 में एक्चुअली वो इंस्टेंस हुआ था जब और लोगों की फंडिंग होना स्टार्ट हुआ, और वो भी मैसिव फंडिंग, मतलब 50 50 60 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग, जहां पे हम $1 मिलियन लेके बैठे हुए थे, राइट। तो उस समय काफ़ी प्रेशर आया था, एंड वी ऑल्सो फेल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत क्लियर नाम लेके एग्जांपल देता हूँ, जैसे खाते बुक ओके क्रेडिट की फंडिंग हुई थी उस टाइम पे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस कि यार दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, एंड वी हैव टू डू इट क्विकली एक्सेट्रा, अदरवाइज नोबडी विल फंड अस इन द फ्यूचर एक्सेट्रा, राइट। तो उस समय हम थोड़ा हिले भी थे, एंड वी एक्सपेरिमेंटेड टू सी। तो आई पर्सनली हैड वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि कोई भी चीज़ अपने आप वायरल हो जाए, ये मतलब 1 लाख में एक बार होता है, वो लाइफ की रियलिटी नहीं है। मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज़ बनाने में ज़िंदगी लगती है। अगर एक एथलीट या कोई भी एक स्पोर्ट्समैन सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसमें जाती है, तब वो सक्सेसफुल होता है। तो मतलब आई मे बी अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, बट मेरा बिलीफ है कुछ बड़ा बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगती है, एंड आई वाज इन फॉर दिस विद व्यापार, कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसको दूँगा, ठीक है। नाउ एट दैट टाइम व्हेन द वेव्स केम, राइट, तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर कि हो सकता है उसकी वजह से वाइप आउट हो जाए। तो वी एक्सपेरिमेंटेड कि जो जो प्रोडक्ट उन लोगों ने बनाया था, हमने सेम प्रोडक्ट बना के एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने उसका नाम वी क्रिएट रखा, वी रिलीज्ड इट, वी आल्सो डिड सम मार्केटिंग अराउंड इट। लेकिन वो जो उस समय मार्केट में न्यूज़ थी कि इट इज़ और ग्रोइंग ऑर्गेनिकली, और ट्रांजैक्शन मैसेजेस करके या वायरलिटी आ रही है उसमें, वो हमने उससे बेटर प्रोडक्ट बना के थोड़े दिन करके देखा, एंड वी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर 3 to 4 months कि वो नहीं हो रहा है, बिना पैसे के ये नहीं ग्रो करेगा। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट स्टॉप दैट फोकसिंग ऑन दैट प्रोडक्ट। मैंने एक ही वर्जन बनाया, 4 से 5 महीने उसको चलाया, उसके बाद उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि वापस बिलीफ आ गया था कि जो हम कर रहे हैं वही सही रास्ता है। वो रास्ते से जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा। मतलब देयर कैन बी अदर बिजनेस मॉडल्स दैट कुड बी बुल्ट दैट कुड बी बिल्ट, बट जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और सेगमेंट भी अलग है, ये भी क्लियरिटी आ गई थी। उसके बाद फिर हम अपने वापस सीधे रास्ते पे आ गए, एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी एक्सेट्रा। ये बहुत सही है सुमित. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट लॉट ऑफ टाइम आई थिंक ईदर पीपल बिकम डिसमिसल ऑफ देयर कंपटीशन, क्या वो तो बेकार है, और पीपल जस्ट कॉपी देम एंड फॉलो देयर पाथ. व्हाट यू डिड वाज लाइक एटलीस्ट लेट्स ट्राई करके देखते हैं कि यार उसमें कुछ मेरिट है क्या, और तुमने ट्राई करके अपना खुद का लर्निंग बिल्ड करा कि यार ये मेरिट नहीं है. एंड जब तुमने रियलाइज करा कि मेरिट नहीं है तो तुमने उसको नहीं परस्यू करा, एंड यू कंटिन्यूड योर ओरिजिनल पाथ वेयर यू वर सीइंग मेरिट फ्रॉम डे वन. आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग. लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि फाउंडर का या तो ईगो बीच में आ जाता है या फिर फाउंडर का फियर बीच में आ जाता है, एंड देन ईदर ऑफ देम ही टेक अ 0-1 अप्रोच rather than testing it out and trying it out and figuring out and build your own learning. I think and this connect to your main point the day one which you started with, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है यूजर का. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो इस पे काम करना चाहिए. एंड in the original version of Vyapar, you were able to see that love and affection, and you were able to see some genuinely people like organic downloads and all that, करेक्ट, which were करेक्ट। और दूसरा क्या था गगन कि 2019 तक लोगों ने रिन्यू करना शुरू कर दिया था, तो रिन्यूअल में भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि लोग यार पैसा देके रिन्यू कर रहे हैं बिना कॉल करे। तो मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट का कॉन्फिडेंस 2019 मिड में आ चुका था हमें। हाँ. इनफैक्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट मेरे यूजर के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि यार 2018 में जब हमने देखा था, एंड वन ऑफ द थिंग विच लाइटनिंग मोमेंट फॉर मी एंड लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर फॉर 10 years एंड एंजल इन्वेस्टर फॉर 5 years, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को क्लोजली देखा है.
एंड स्पेशली कंज्यूमर स्टार्टअप को. बट व्हाट आई वाज अमेज्ड टू सी इन व्यापार कि यार ये लोग फेसबुक से डाउनलोड करवा रहे थे. कुछ $4-5 का डाउनलोड का खर्चा होता था, या फिर मतलब कैक था बेसिकली, नॉट डाउनलोड कन्वर्जन के बाद. एंड $10 के आसपास वो यूजर से चार्ज कर लेते थे. तो देवर लाइक सॉर्ट ऑफ कैक पॉजिटिव, लाइक कैक रिकवर कर पा रहे थे. एंड उसके लिए उनको फोन नहीं करना पड़ता था. दैट वाज समथिंग वाज अमेजिंग फॉर मी कि यार विदाउट फोन कॉल करे यूजर वर फोर्स्ड आफ्टर 30 days की यार पे करो या यूज नहीं करो. एंड मैं सरप्राइज था कि यार सुमित मतलब इन्होंने कॉल सेंटर ही नहीं लगा रखा है, या फिर आदमी ही नहीं जाता है, या उसको फोन नहीं करता. दिस वाज समथिंग वेरी अमेजिंग एंड लर्निंग विच वाज देयर इन 2018. एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि यार या कुछ तो पीएमएफ के अर्ली साइन है, एंड लेट्स invest. Like this is something I was amazed and surprised both. Sure. Good Sumit, good. So let's change the track. तो यार तुम्हारे वेंटेज पॉइंट से सुमित ये बताओ कि यार तुमने क्या देखा ये एसएमबी मार्केट के अंदर चेंज आते हुए, और लाइक वेयर व्हाट डू यू सी, मतलब बिकॉज आई थिंक इंडिया एसएमबी मार्केट मोनेटाइज नहीं हो सकता है, या इंडिया एसएमबी मार्केट छोटा है, या बहुत कम यूजर है, या डिफिकल्ट टू सेल है. तो you face this challenge while you were building, and these questions you also came across. But what do you think, what has changed, and maybe what, and also what is something maybe normal user is missing, like तुम क्या बताना चाहोगे, like how interesting is this market in your words, and like give us some understanding about Sure. India Sure. SMB market. श्योर. तो गगन, इसमें 2 पॉइंट्स मैं बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहूँगा. तो पहला पॉइंट ये कि अगर आप देखो एमएसएमईज़ मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएसएमईज़ इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट नंबर चाइना में है, सेकंड नंबर इंडिया में है. और Right, एमएसएमई वो बंदा है जो कि पैसा कमा रहा है धंधे से, करेक्ट? right, तो तो पहली बात तो ये कि वो पैसा देगा क्यों नहीं? देयर इज़ नो रीज़न व्हाई ही विल नॉट पे. तो पहला पहला क्वेश्चन आपका कि मार्केट कितना बड़ा, ये तो आई थिंक मेरी पहली लाइन में क्लियर हो गया कि मार्केट मतलब इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, राइट? सेकंड पॉइंट कि लोग पैसा देंगे कि नहीं, उसका सिंपल आंसर ये है कि it is all about the value. People don't understand the value of the product that they are getting. अगर उनको वैल्यू समझ में आ गया तो वो पे भी कर देंगे. इट्स नॉट अबाउट पेइंग, क्योंकि अगर आप देखो तो टैली ने भी तो बिल्ड किया ना, और वो पैसा देके ही बेच रहे हैं ना. तो नोबडी इज, आई मीन इट्स नॉट कि वो फ्री में दे रहे हैं. एंड देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में बिकते हैं. ऑब्वियसली सैस नहीं है, बट है तो सॉफ्टवेयर जिसके लिए लोग पैसा दे रहे थे. जैसे मैंने अपनी शॉप पे ही देखा था, मेरी ज्वेलरी की शॉप है घर में, एंड दे बॉट सॉफ्टवेयर कॉल्ड ज्वेली, और 15,000 रुपये देके खरीदा उन्होंने. और मैं कहूँगा कि हमारे घर में जो शॉप है ज्वेलरी का, वो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज काइंड ऑफ सेगमेंट वाइज बिलो एवरेज सेगमेंट में है, मतलब कि लोअर अर्निंग वाले सेगमेंट में फॉल करता है. तो उसके बावजूद वो 15,000 रुपये दे सकते थे बहुत कंफर्टेबली, बिकॉज दे अंडरस्टूड द वैल्यू, क्योंकि बाकी लोग यूज कर रहे थे ज्वेलरी मार्केट में. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोग पैसा देंगे सॉफ्टवेयर का और देते हैं. इट्स जस्ट दैट कि उनको वैल्यू नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ चेंज है. कि मैं एक चीज़ करता आ रहा हूँ 15 साल से. मुझे अभी भी याद है, मैं एक सरदार जी की दुकान पे गया था, उनको मैंने पिच किया व्यापार. मतलब बहुत सारे मार्केट में जाते थे हम, काफ़ी सारे लोगों को पिच करते थे. मैं खुद जाता था कि यार हमने बनाया है, ये किस आपके हेल्पफुल हो सकता है, ये आपका है, इस तरह के काम होगा, ये आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व होगा. बट कई बार लोग मना कर देते थे कि यार हम तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे. लेकिन कई लोग इंटरेस्ट दिखाते भी थे. तो वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट डेवलप होने में टाइम लग रहा है और लगेगा थोड़ा सा और. लेकिन पैसा नहीं देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पैसा नहीं देना होता तो आप टैली को भी नहीं दे रहे होते. तो आई थिंक आई होप आई वाज एबल टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस. कि मार्केट भी बहुत बड़ा है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, इससे ज़्यादा बड़ा मार्केट इन वर्ल्ड में है ही नहीं. मतलब यूएस का भी इससे छोटा मार्केट है इन टर्म्स ऑफ एमएसएमईज, नंबर ऑफ एमएसएमईज. ऑब्वियसली टिकट साइज डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द जीडीपी एंड एवरीथिंग ऑफ द कंट्री, बट मार्केट इज लार्ज, वेरी वेरी लार्ज. एंड इन बिजनेसेस को बेच के तुमने क्या सीखा, मतलब तुमने मतलब इन लास्ट 5 years व्हाट्स योर लर्निंग अराउंड कि इनको एक्वायर कैसे करा जाए, इनको कैसे बेचा जा सकता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट थिंग है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाई. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेगमेंट के लिए.
कि दे डोंट बाय सॉफ्टवेयर, दे बाय सर्विस. So I always call SaaS for Vyapar is not software as a service, it is actually a service as a software. If you are not able to service them well, then they will not buy the software and they will become detractors. And when I say service, that basically means कि यार मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कॉल करूँ, मेरा प्रॉब्लम कॉल पे सॉल्व होना चाहिए. तो सेल्स नहीं था, लेकिन कॉल सेंटर हमारा डे वन से था. जब हमने फंड नहीं उठाया तब भी इनकमिंग कॉल सेंटर था. Yeah. Very good point. Very good point. And like, uh, I've been seeing it right now also. I think सबसे बड़ी टीम तुम्हारी कस्टमर सपोर्ट की टीम है आज भी, राइट, व्यापार में. करेक्ट, करेक्ट. तो अगर आप ऐसा एमएसएमईज के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा है और सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, तो आपको सर्विस बहुत स्ट्रांग रखनी होगी, बिकॉज दे एक्सपेक्ट, एंड इफ इट इज देयर मिशन क्रिटिकल. जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह 8 बजे दुकान खोली, परचून की शॉप है, वो व्यापार यूज कर रहा है, उसका बिलिंग बिलिंग रुक गया, तो मतलब उसको 8 बजे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वरना वो बिल बनाए कैसे? राइट. तो इट्स मिशन क्रिटिकल काइंड ऑफ अ थिंग. सुमित, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसी से अराउंड, एंड आई वांट यूजर्स टू नो फ्रॉम यू डायरेक्टली कि यार तुम्हारा रोज सुबह उठ के फर्स्ट हैबिट क्या है? व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? यू शेयर समथिंग विद मी सम डेज बैक. तो फर्स्ट थिंग आई गेट अप इन द मॉर्निंग इज, उसके बाद सबसे पहले मैं फ़ोन उठाता हूँ और जाके प्ले स्टोर रिव्यूज़ पढ़ता हूँ. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई डू एवरी डे एंड हैव बीन डूइंग फॉर ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स. जब से 2015 से चालू हुआ है, तब से अभी तक हर दिन यही करते हैं. और कितने मतलब रिव्यूज हैं, थोड़ा क्वांटम बताओ यूजर्स को. अराउंड वी हैव अराउंड 90,000 रिव्यूज़, रिटन रिव्यूज़, मतलब जिसमें लोगों ने कॉन्टेक्ट कुछ टेक्स्ट डाला है, एंड देयर इज़ नो रिव्यू दैट आई हैव नॉट रेड. अगर वो लोग गुड और ओके भी लिखते तो भी मैं पढ़ता हूँ. ऐसा नहीं है कि रिव्यू ना, कोई भी रिव्यू ऐसा नहीं होता जो ना पढ़े. एंड तुमने एक अपना सीक्रेट नहीं बताया कि तुम अपने कंपटीशन के भी रिव्यूज पढ़ते हो. Correct. Actually, that gives a very good understanding about what's happening in the market. What are your strengths? What are weaknesses of the competitor? What are the strengths of the competitor? तो वो बहुत अच्छी तो क्लैरिटी देता है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इन माय व्यू आल्सो कि यार ये एसएमबी सेस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग मार्केट है और मुझे भी लगता है लार्ज मार्केट है, बट ये नया इवॉल्विंग मार्केट है. इट्स अ चैलेंजिंग मार्केट एंड इवॉल्विंग मार्केट. सो ऐसे मार्केट में यूजर से कनेक्टेड रहना, नॉट जस्ट कि फर्स्ट 2 years के पीएमएफ के बाद, बट लाइक लेटर ऑन भी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक दिस reading the reviews on a play store is a very helpful and it can be very insightful apart from doing a direct customer call. And this is, and you continue to do Yes. that. This is very super, very super. गगन एक और चीज़ करता है, जो ये चीज़ जो आप जो रीडिंग अपने रिव्यूज पढ़ने से एक और चीज़ पता लगती है. कभी भी प्रोडक्ट में कुछ फटता है मार्केट में ना, तो इमीडिएटली पता लग जाता है. टीम या कोई बताए ना बताए, प्ले स्टोर पे पता चल जाता है इमीडिएट. Yeah. No, this is the power of internet and like this open system of internet, and very well used by you. This is a good hack. तो यार सुमित है ना, आई थिंक तुम्हारी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार. मतलब यू केम फ्रॉम अ नॉन आईआईटी, नॉन sort of a famous startup. Like Intuit is a US famous company, but again not a startup like what we see here. And you started with a वेरी इनिशियल आइडिया कि अपने अंकल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. तो तुम्हारी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. तुमने एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है, एटलीस्ट फ्रॉम द वेंचर फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो एंड तुमने बहुत चैलेंजेस भी देखे हैं, मतलब बिकॉज यू आर द फ्रंट रनर फॉर दिस स्पेस कैटेगरी एंड ऑल दैट. तो यार क्या एडवाइस तुम देना चाहोगे यूजर को, जो जो एस्पायरिंग फाउंडर है, जो ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा, और मतलब व्हाट यू वांट टू शेयर बेस्ड ऑन योर जर्नी सो फार, मतलब व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? श्योर. तो गगन, मतलब when I was working in Intuit, right, at that time also I used to keep thinking कि कुछ बनाते हैं, कुछ इंडियन मार्केट के लिए सॉल्व करते हैं. तो एंड दैट हैपेंड फॉर अ क्वाइट लॉट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो मैं उन सभी लोगों को बस ये एडवाइस दूंगा हु आर आइदर डूइंग देयर कॉलेज और जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज एंड थिंकिंग कि मैं कुछ करता हूँ, बट नॉट एबल टू डू ड्यू टू डिफरेंट रीजंस अक्रॉस इन द एनवायरनमेंट, राइट. तो आई वुड टेल देम कि यार ट्राई कर लो. ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में टाइम है. पैसा तो आ भी जाएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा.
बट टाइम एक बार चला जाता है तो लौट के नहीं आता है. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, गिव इट अ ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद इट एंड गिव इट योर बेस्ट एंड देन लेट इट गो. मतलब फेल होना इज कंप्लीटली ओके. फेल होना इज बेटर देन नॉट ट्राइंग. No, no, very true. I am completely, I can correlate, and I think, um and there is a lot of learning when you fail also. So I think the life doesn't end एंड इट्स at. नॉट फेलियर, आई वुड से इट इज लर्निंग, क्योंकि एटलीस्ट जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा. यू डोंट इवन नो कि फेल होते कैसे हैं या क्या रास्ता है फेल होने का. तो आई थिंक ट्राइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई थिंक एवरीबडी इज स्केर्ड टू ट्राई. वी शुड फर्स्ट ट्राई एंड देन इट्स ओके. मैक्सिमम क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएंगे, खाने पीने को मिल रहा है, घर रहने के लिए छत है, उतना काफी है ना, और क्या चाहिए लाइफ में. नहीं, बहुत खूब सुमित. वेरी इंस्पायरिंग योर जर्नी, एंड हम और तुम्हारी इस जर्नी से देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे एंड समझना चाहेंगे. बट बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो. And all the best. Wish you all the best for थैंक यू सो building मच a गगन. थैंक यू सो मच मधुकर. large company from India for India. Okay. या Okay. ग्रेट. थैंक्स, थैंक्स सो मच.